Hi students, good morning all of you. This is SK sir. Today I brought very important topic for you here, that is the king of alkane. So what is the king of alkane? Woods reaction. See, in the alkane chapter only three important chapter है भाई. तो उसमें है the first is Woods reaction है, the second is Kolbe electrolysis, third है that is hydrogenation of alkene and its stereochemistry. ये तीन important reaction है from alkane chapter. वहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. Are you getting my point? See here. तो यहाँ पे हम वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. So what is the Woods reaction? क्या इसका मैकेनिज्म होगा? पूरा कुंडली पढ़ेंगे. इसके एक्सेप्शनल केस क्या है, बस तो प्रॉब्लम है. प्लीज वीडियो को स्क्रॉल मत करो, स्टार्टिंग से एंड तक देखो. तो आपको यहाँ मैं अराउंड 15 to 20 प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा इसमें वुड्स रिएक्शन में. अगर ये ठीक से देखा आपने वीडियो, ये वुड्स रिएक्शन का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने दो, अगर वुड्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपके हाथ में से जाएगा ही नहीं, ये मेरा गारंटी 100%. तो देखो व्हाट इज द वुड्स रिएक्शन. ठीक है, नाउ सी वेरी सिंपल है. व्हेन अल्काइल हाइड्राइड treated with sodium metal in the presence of dry ether, it gives higher alkane. This is known as a Woods reaction. See here, alkyl halide means Rx when treated with sodium. ठीक है, so now here the alkyl halide is 2 moles, Rx and Rx. जो 1 से 2, these two halogens are combined with 2 sodium and remove as NaX, and the remaining RR will combine, you will get higher alkane. See, alkyl halide contain only one carbon atom, that product is contain 2 carbon atoms, mean higher alkane, carbon atoms increases. now देखो, तो यहाँ पे मैंने 2 मोल्स रिप्रेजेंट किया. जरूरी नहीं कि बार-बार ऐसे 2 मोल्स रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे देखो Rx when treated with sodium metal, you have to consider 2 moles this one in your mind. तो 2 moles will react, इसका मतलब ये डायमराइजेशन होगा 2 moles and RR बनेगा 2 NaX is out. For example, methyl bromide लिया, when methyl bromide is treated with sodium and dry ether, तो methyl dimerization will takes place. दो methyl combined होगा तो ethane and sodium bromide. And if you take the ethyl bromide, तो ethyl bromide में 2 moles लो तो C2H5 combined होगा, then you will get the 4 carbon atoms, that is the N-butane. So this is the what Woods reaction. Woods reaction क्या होगा बेटा? When alkyl halide treated with sodium metal, it gives higher alkane in the presence of dry ether. ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ठीक है, the mechanism takes place by 2 different methods. One is the ionic method and free radical method. अभी ये क्या मेथड है, इसका क्या कहानी है, हम लोग देखेंगे. ओके, राइट डाउन. Now see the mechanism of the Woods reaction. The first is ionic mechanism. So what is the ionic mechanism? See here. So in this method, first this alkyl halide undergoes ionization and you will get R plus and X minus. Now we know that in this method we are using the sodium catalyst undergoes 2 mole sodium, Na plus, it gives 2 electrons. Okay. Now देखो, अभी ये जो आपका जो अल्का कार्बोकेटायन है, it having what? How many electrons? 6 electrons कार्बोकेटायन. So now it will take the 2 electrons in presence of Na plus. So now ये electron ये ले लेगा. Now you will get this carbon atom having the 8 electron. So R minus carbon and साथ में Na plus ही होगा इसमें. और यहाँ पे 2 Na plus में से एक Na plus combined होगा NaX and one is combined with R minus. Now after this what happened? This R minus Na plus will react with one more alkyl halide. See here. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको रिप्लेस कर देगा. दिस इज SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये न्यूक्लियोफाइल आउट लिविंग ग्रुप. सो Na plus X is combined again, then you are getting what? Higher alkane. This is the ionic mechanism. Now see, what is the free radical mechanism? Free, most of the problems we will use only free radical mechanism, and this is very important. See here. So in this case, first see क्या हो रहा है भाई यहाँ पे. This is alkyl halide. ओके, यहाँ पे 2 moles of alkyl halide.
undergoes ionization to R plus and to X minus. अभी क्या होगा? Now this sodium, 2 moles of sodium undergoes oxidation, 2 Na plus और 2 इलेक्ट्रॉन देगा. देखो 2x minus 2 Na plus, this 2 NaX is out. Now, so normally we know that carbocation having the 6 electron, when it will take the 1 electron, it become free radical having the odd number of electron. तो आपका बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आपका 2 फ्री रेडिकल बना यहाँ पे. सो नाउ सी, फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल. ओके, तो 2 फ्री रेडिकल कंबाइंड होगा, देन आपका बना अगेन हायर अल्केन. ओके, नाउ दिस इज द व्हाट mechanism of Wurtz reaction. Understood all of you? Okay, make it fast. Now see, हम बात करते हैं अब इसका क्या लिमिटेशन है इस रिएक्शन को. लिमिटेशंस यार देखो, इस रिएक्शन में जो कुछ भी हम अल्काइल हाइड्राइड ले रहे हैं वो डाइमर होके आपका प्रोडक्ट बन रहा है. फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड लिया तो आपको बन रहा है इथेन. सो इथाइल क्लोराइड लिया तो ब्यूटेन, डाइमर है. सो यहाँ पे द फर्स्ट लिमिटेशन इज मीथेन. मीथेन का मीनिंग क्या होता है भाई? ओनली CH2. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. ये मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते. क्यों? मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो हमेशा आपको उस रिएक्शन में डाइमर बन रहा है, तो एटलीस्ट इवन नंबर बन रहा है, तो आपका ऑड नंबर तो बनेगा नहीं. मीथेन सिंगल कार्बन एटम बनेगा नहीं. सेकेंड, सेम, ओनली alkanes having even number of carbon atoms are prepared. मतलब जो अल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वही प्रिपेयर करेगा, बट नॉट ऑड नंबर. ऑड नंबर प्रिपेयर कर ही नहीं सकते. क्यों? फॉर एग्जांपल देखो, आप अगर मिथाइल ब्रोमाइड लिया एंड सोडियम ईथर, तो ये डाइमराइजेशन होगा 2, तो देखो इवन नंबर. अगर सपोज आपने C2H5Br लिया, सेम रिएजेंट, तो क्या बनेगा? 4 कार्बन एटम लिया. अगर आपने 3 कार्बन एटम लिया तो ये डाइमराइजेशन टोटल कितना होगा? 6 होगा. 1 2 3 4 5 6. तो यार सभी में इवन नंबर 6 है, 6 कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 कार्बन, इवन नंबर, तो ऑड नंबर आपको बनेगा ही नहीं. दिस इज आल्सो वन लिमिटेशन. अंडरस्टूड? नाउ सी हियर थर्ड लिमिटेशन देखो, different RX means alkyl halide cannot be used because mixture of alkenes are formed. मतलब आप डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड यूज नहीं कर सकते कि हमको मिक्सचर मिलेगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दैट मिक्सचर. व्हाई? बिकॉज़ देयर बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल देखो यार, ये आपने लिया इथाइल ब्रोमाइड और एक लो मिथाइल ब्रोमाइड एंड वन मोर इज इथाइल ब्रोमाइड. तो आपने रिएक्ट करवाया सोडियम एंड प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये दोनों कंबाइन होने से पहले जो मिथाइल ब्रोमाइड है ना, इटसेल्फ खुद रिएक्ट होगा, खुद रिएक्ट होकर डाइमराइजेशन होगा. ये दोनों अपने आप के साथ रिएक्ट हुआ तो इथेन बना. तो ये भी खुद के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बन गया? ये ब्यूटेन, C2H5. और एक ये दोनों रिएक्ट होगा, तब यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 C2H5. टोटल आपको 3 प्रोडक्ट मिला, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन. इस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड कैन नॉट बी यूज्ड इन द वुड्स रिएक्शन. ओके, राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट इट. फोर्थ लिमिटेशन, ये जो फोर्थ लिमिटेशन है ना, एडवांस के लिए देखो. फोर्थ लिमिटेशन है सम साइड प्रोडक्ट्स
like alkene and lower alkenes also formed due to disproportionation reaction. Disproportionation reaction. Now see for example, यार मैं सपोज बात करता हूं, देखो CH2 CH3 CH2 Br, ये जो कंपाउंड है व्हाट दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, अपने ले रखे यहां पे CH3 Br, देखो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये तो है ना, इसके साथ तो कंबाइंड होगा ही, तो आपका बन गया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर. फर्स्ट यू विल गेट व्हाट, डायमेराइजेशन. फर्स्ट दिस इथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद मिथाइल ब्रोमाइड, तो आपका बन गया CH3, नाउ CH2 CH3, एक प्रोडक्ट मिल गया. उसके बाद ये जो है खुद के साथ भी होगा, ब्यूटेन बन गया 3, और ये खुद के साथ होगा, टोटल 3 बन गया 1 2 3. अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन की वजह से देखो, नॉर्मल इस रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. देखो ये जो इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड पहला क्या होगा आपका, आयनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, आपका फ्री रेडिकल बनेगा, देखिए फ्री रेडिकल. ओके, तो ये फ्री रेडिकल बनने के बाद देखना, फ्री रेडिकल बनने के बाद क्या होगा, तो अभी 2 फ्री रेडिकल लेंगे हम लोग, ठीक है. अभी यार तो आपका ये जो फ्री रेडिकल है, अगर 2 कंबाइंड हुआ, 2 फ्री रेडिकल आपका बन गया ये ब्यूटेन. 2 फ्री रेडिकल कंबाइंड, यू विल गेट द ब्यूटेन, एंड देयर इज वन मोर प्रोडक्ट इज पॉसिबल. देखना ये फ्री रेडिकल इट विल टेक द हाइड्रोजन दिस टाइम, तो अभी क्या बन गया, और एक फ्री रेडिकल बन गया यहां पर. नाउ यू विल गेट CH2 डॉट, नाउ CH2 डॉट, अभी ये बना तुम्हारा CH3, नाउ CH3. अभी these 2 radicals will combine and you will get C alkene, और एक साइड प्रोडक्ट बन गया. सो टोटल प्रोडक्ट कितना बन रहा है भाई इसमें, प्रोपेन 1, ब्यूटेन 2, ईथेन 3, ये तो ईथेन सेम है. देन ईथीन, टोटल प्रोडक्ट्स कितना बन रहा है, टोटल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 4. ओके, दिस इज अवर फोर्थ लिमिटेशन. और ये फोर्थ लिमिटेशन के बेस पे IIT एडवांस क्वेश्चन है, अभी मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन. अभी जो हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैं कराता हूँ, पहले ये लिखो, ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चंस. अभी फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ आई टेक दिस वन Br, तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो मैं इसका मैकेनिज्म लिखूंगा. इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम पहला क्या है आपका, ये निकलेगा बाहर, ये भी निकलेगा बाहर, तो ये कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन, तो ये दोनों कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन, और यहाँ पे बन गया तुम्हारा 2Br माइनस. नाउ देखो ये सोडियम आपका कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2Na प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एक ले लेगा, देन यू विल गेट व्हाट हियर, 2 फ्री रेडिकल. अभी दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड होके क्या बनेगा बेटा, साइक्लोप्रोपेन का प्रोडक्ट. तो आपका 2 फ्री रेडिकल कंबाइंड. नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन, सपोज दिस इज व्हाट, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सोडियम
एंड ड्राई ईथर। तो ये डायमेराइजेशन होगा, देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे टू फ्री रेडिकल, those two free radical will combine and you will get that compound having the even number of carbon atoms. Okay, now see third, suppose if you take like this, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, now see this is a Br and this is one Cl, so now here see sodium and ether, तो क्या बनेगा आपका दो फ्री रेडिकल, ये यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, तो कंबाइन करो 1 2 3 4 5 6, so now you will get the 6 member ring carbon methyl. The one more fourth problem, see here, suppose this is one 2015 JEE advanced question है, देखो Br है और यहाँ पे Cl है, so in presence of sodium and dry ether, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, so फर्स्ट A, डायमेरेशन लिखा है यहाँ पे Br Cl, then B, then here C Cl Cl, then C, Br Br, then D. Now ये sorry D option जो है, now here in the D C like this. So what would be the right answer? C यहाँ पे। तो यार कुछ स्टूडेंट्स है तो ऐसा भी सोचते, देखो ये ब्रोमीन और क्लोरीन में द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इज वीक एंड Br माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, सो फर्स्ट यू विल गेट द फ्री रेडिकल हियर, सो डायमेरेशन इफ इट इज अंडरगोस डायमेरेशन द पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट इज दिस वन, तो क्लोरीन रहेगा बट Br डायमेराइजेशन होगा, बट यहाँ पे देखो जब ये Br है ना एट द सेम टाइम ये भी निकलता है, तो इसके बाद तुरंत तो ये दो फ्री रेडिकल बनेगा आपका, ये दो फ्री रेडिकल, तो आपका बन गया दोनों के बीच में बॉन्ड, दिस इज द राइट आंसर, ये नहीं है। देखो इन केस अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब तुम्हारा प्रोडक्ट ये होगा, अगर दोनों है तो आपका आंसर ये होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, दिस इज 2015 JEE advanced question, राइट। अब एक एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दबंग 3 क्वेश्चन, दैट इज दमदार वाला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ethyl bromide and propyl bromide, sodium and ether। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, number of possible products, option A 4, option B 6, option C 5, then option D 7। तो बताओ भाई आंसर क्या है इसका? तो यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी देखो ये इथाइल है, इथाइल खुद के साथ कंबाइंड होगा तो ब्यूटेन बनेगा, ये खुद के साथ कंबाइंड होगा तो हेक्सेन बना, अब ये दोनों कंबाइंड हुआ तो ये 3 + 2 पेंटेन बना, टोटल आंसर इज 3, इसमें तो 3 है ही नहीं, समझे बात? अगर ये क्वेश्चन जेईई मेंस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 3 ही आंसर है, अगर ये एडवांस में पूछा तो इसका आंसर अलग होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो इसका आंसर राइट आंसर इज व्हाट, आप ही बताएंगे। पहले इसका मैकेनिज्म लिखता हूं मैं, देखो ये वाली CH3 CH2Br, ये क्या है भाई CH3 CH2 CH2Br, तो पहले देखो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ये बनेगा फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल बना, और ये क्या बनेगा इससे प्रोपाइल फ्री रेडिकल बनेगा। ओके, तो 2 फ्री रेडिकल बना, अब इसकी पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट देख लेते हैं।
तो पहले मैं इथाइल के साथ स्टार्ट करता हूं। इथाइल फ्री रेडिकल, ऐसे 2 मोल्स ले लो, क्योंकि यार खुद के साथ रिएक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी खुद के साथ रिएक्ट हुआ, ये खुद के साथ रिएक्ट हुआ, तो ये एक पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट है, वो ब्यूटेन है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट है, देखो ये जो फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होकर ये जो फ्री रेडिकल है इट विल टेक द हाइड्रोजन, अगर यहां से हाइड्रोजन लिया और एक फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाउ यू आर गेटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इट बिकम टू CH3, नाउ CH3। भाई टोटल यहां पे कितने प्रोडक्ट मिला, एक ब्यूटेन है, एक इथीन है और इथेन, 3 प्रोडक्ट्स मिला एक से, ठीक है। नाउ सेकेंड, टेक द प्रोपेन, 2 प्रोपेन, और दोनों कंबाइंड होगा 3 कार्बन 3 कार्बन, टोटल 6 हेक्सेन बना, 1 2 3 4 5 6 n हेक्सेन, ओके। नाउ और एक पॉसिबिलिटी है, देखो ये जो फ्री रेडिकल है यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक प्रोपीन बना और एक प्रोपेन बना, टोटल कितना बना भैया, हेक्सेन प्रोपीन प्रोपेन, ये 3 टोटल कितना 6। राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज 7 नॉट 6। क्यों भाई, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, ये 2 भी तो कंबाइन हो सके, 3 + 2 टोटल 5, 1 2 3 4 5, दिस इज n पेंटेन, सो दिस इज द राइट आंसर। राइट आंसर एडवांस के लिए 7 है, अगर जेई मेंस में पूछा तो 3 है ऑप्शन, अंडरस्टूड, राइट आंसर। नाउ सी और एक दमदार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे पूछा गया कि पहली पाई बॉन्ड है, यहाँ पे Cl, सो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, so again number of products understood, A 2 B 3 C 4 D 5, देखो आंसर क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं। पहला देखो आपके पास ये कंपाउंड है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। तो आपने जीओसी पढ़ा होगा, तो यार हम उसको नामकरण कर देते ए, तो ये रेजोनेंस भी हो सकता है। देखो ये जो एक पाई, फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हियर, नाउ हियर यू विल गेट द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे ये आपका बी मिला। यार 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ मुझे, 2 में से देखो ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, दिस वन 2 पाई बॉन्ड्स, इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे, दिस इज कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन। देखो these 2 pi bonds are resonance with free radical, but they are not in resonance. These 2 pi bonds are in resonance and conjugation with free radical, so ये more stable होगा। देखो जीओसी का क्वेश्चन भी आ रहा है इसके अंदर, more stable। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ये खुद के साथ भी बॉन्ड बना देगा, डायमराइजेशन, ऐसा फ्री रेडिकल और एक ले लो, तो ये बन गया। देखो फ्री रेडिकल का इटसेल्फ कंबाइन, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और इसके एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो नाउ सी पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ये 2 कंबाइन होता है, एक प्रोडक्ट मिल गया। तो ये कैसे मिला ये प्रोडक्ट, A प्लस A के साथ प्रोडक्ट मिला। अभी ये भी देखो, अब इसका नामकरण किया B, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये तुम्हारा फ्री रेडिकल, ये 2 कंबाइन करो, तो ये बन गया तुम्हारा B प्लस B के साथ, मतलब दोनों सेम है डायमेंशन, तो 1 2 प्रोडक्ट्स मिला। और एक प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, ये 2 कंबाइन हो सकता है ना, तो नाउ सी यहाँ पे फ्री रेडिकल था और एक देखो, नाउ दिस इज फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन करो, तो ये बना तुम्हारा A प्लस B के साथ,
तो टोटल 1 2 3 products. Right answer is E. That is the answer. Okay, write down. देखो नेक्स्ट, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज वन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम. दे आर आस्किंग व्हाट ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर. इट मे बी मल्टीपल आंसर. दे आर आस्किंग P प्रोडक्ट. ते मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है. देखो हमें पहले मैं इसकी बात करता हूँ. देखो यहाँ पे एक लड्डू दे रखा है ब्लैक. दिस इज C14 है, आइसोटोपिक लेवलिंग है. कार्बन के कितने आइसोटोप्स है? 3. C12 C13 C14. C14 आइसोटोपिक लेवलिंग किया हुआ है. तब का A B C D कौन सा वाला ऑप्शन? तो इसके पहले हमको डायरेक्टली थोड़ी ना आंसर करेंगे, पहले इसका हम प्रोडक्ट बनाते थे. क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखो पहले हम ले लेंगे इसको. ये C14 आइसोटोपिक लेवलिंग है. ठीक है भाई, दे रखा है. तो नाउ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर क्या होगा बेटा? पहला होगा आपका फ्री रेडिकल. ठीक है, ये आइसोटोप. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, तो भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ. देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपका बन गया यहाँ पे पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो ये फ्री रेडिकल वाला C14 है. देखो C14 का पोजीशन फ्री रेडिकल है. तो अभी प्रोडक्ट बनाओ, ये खुद के साथ कंबाइंड हो जाएगा. देखो फ्री रेडिकल पोजीशन क्या है? अरे C14 का पोजीशन क्या है? 1 2 3rd कार्बन के ऊपर. तो अभी इसका डायमराइजेशन, नाउ इफ यू ड्रॉ द डायमराइजेशन प्रोडक्ट हियर, पाई बॉन्ड है. तो ये फ्री रेडिकल है. फ्री रेडिकल कंबाइंड हुआ तो उसकी पोजीशन पे यहाँ पे आइसोटोपिक लेवलिंग इफेक्ट है. देखो आइसोटोपिक लेवलिंग एक प्रोडक्ट है. और देखो यहाँ पे ये खुद डायमराइजेशन होगा. तो नाउ हियर दिस इज आवर फ्री रेडिकल. दिस इज फ्री रेडिकल और यही आइसोटोपिक, यही आइसोटोप. ठीक है. और एक पॉसिबिलिटी है, देखो ये दो भी तो कंबाइंड हो सकता है, तो ये दोनों कंबाइंड होगा. नाउ हियर एक्चुअली अगर न्यूमेरिकल आंसर होगा यार, अभी ये जो क्वेश्चन है ना इंटीजर में पूछा जा सकता है. मेंस में भी इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, इंटीजर क्वेश्चन होगा. नाउ दे पाई बॉन्ड. देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल का पोजीशन, सॉरी आइसोटोपिक का पोजीशन क्या होगा? 1 2 3. सो 1 2 3 यहाँ पे आइसोटोपिक लेवलिंग है और यहाँ पे आइसोटोपिक लेवलिंग ये वाला. तो देखो इसका प्रोडक्ट है इसके अंदर. देखो पहला आंसर बी पॉसिबल है, ए भी आंसर है इसका. देन बी भी आंसर है. देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये भी आंसर है. तो देखो पाई बॉन्ड के ऊपर कभी फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड के ऊपर आइसोटोपिक लेवलिंग है ही नहीं यहाँ पर. और पोजीशन देखो, ये जो आइसोटोपिक लेवलिंग है ये फ्री रेडिकल है. फ्री रेडिकल 1 2 पोजीशन पे है ही नहीं. देखो ये फ्री रेडिकल आइसोटोप कौन से पोजीशन पे? 1 2 3 पे. सो यहाँ पे देखो या तो ये फ्री रेडिकल के ऊपर ही आइसोटोप है, लेकिन 1 2 पोजीशन पे आइसोटोप है ही नहीं. इसका मतलब ये आपको नहीं मिलेगा. सो योर राइट आंसर इज आंसर A B C, all 3 आंसर. Okay, write down. Now see a question. For example, if you take like this, this is Cl. यहाँ पे सोडियम in presence of ether. तो क्या होगा? एक ही Cl है, तो its dimerization will take place 2 moles. This is your product. Suppose if you take like this, Cl Cl, तो क्या होगा बेटा? सोडियम in presence of ether. तो first you will get what here? C. ऐसे दो फ्री रेडिकल बने और इसके अंदर डबल बॉन्ड बना, तो ऑलरेडी दिस इज अ 4 membered ring. If you form the double bond in this compound, here what? sp2 hybridization, 120 degree bond angle is not possible, highly strained. तो अगेन ये डायमराइजेशन होगा.
तो ऐसे दो मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाएंगे. नाउ यू विल गेट व्हाट हियर. तो ये इसके साथ बॉन्ड बना, ये इसके साथ बॉन्ड बना. तो नाउ यू विल गेट हियर लाइक दिस. See here, 2 box and here 1 more box. Now question number 10. See here, suppose if you take this one, this is one compound, Br, Br, now Br, now Br. See like this. एक compound ऐसा कुछ. Now ether. तो यहाँ पे दो Br, दो टोटल 4 Brs, बट ओनली 2 Brs आर रिप्लेस्ड. यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल बना एक Br जाके, और ये यहाँ पे Br जाके और एक फ्री रेडिकल बना. सो नाउ दिस 2 फ्री रेडिकल्स विल कंबाइन. बॉन्ड बना, तो 1 मोर इज देयर हियर. तो ये नहीं जाएगा. क्यों? अगर इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे, 3 मेंबर रिंग, ऑलरेडी 2 मेंबर रिंग बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, 3 मेंबर रिंग्स. इफ यू मेक द डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल, तो 3 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड और भी पॉसिबल नहीं होगा, ये स्ट्रेंड हो जाएगा. सो आपको दो ही निकालना है इसमें से. नाउ नेक्स्ट 11 देखो यहाँ पे. सपोज ऐसा एक प्रोडक्ट Br, नो Br, नो Br, नो Br. देखो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर, तो फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल. अब ये कंबाइन करो इसमें, तो आपको बनेगा ऐसा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, free radical, free radical. Okay, like you will get the product. Understood? Now see here, that is question number 12. Suppose if you take this one, see Br, now again Br. Now in presence of sodium and ether, तो देखो अगेन क्या होगा बेटा इसके अंदर, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री. कमेंट करो. तो भाई ये चॉकलेट जैसे रैपर, चॉकलेट रैपर होता है ना, ऐसे बनेगा. नाउ यू विल गेट लाइक दिस. So these are the 12 problems. Just pause the video and write the problems. Question number 13. Yeah, this is exceptional case है. For example, this is tertiary butyl bromide. When you treat with sodium and ether, तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल बना, dimerization, dimethyl. But this is not found. Not found. Due to अभी लिखेंगे क्या है, पहले देखो. तो now first you will get the free radical. तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल बनेगा आपका. फ्री रेडिकल देखिए, 2 फ्री रेडिकल में कंबाइन नहीं हो पाएगा. Why? Due to this CH3 groups, due to this crowding, there is a repulsion between these 2 free radicals. आया समझ में? Now here what? Here 3 CH3, 3 CH3. Due to crowding, due to repulsion, dimerization is not possible. So what? Due to crowding. क्योंकि crowd होगा ना ये वाली. So due to repulsion, product is unstable. Okay? Due to crowding. तो so what क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, देखो disproportionation reaction होगा. Now this free radical will take simply this hydrogen. Now यहाँ पे एक free radical होगा, this free radical will form the pi bond. Now CH3, now CH3. Now one product is isobutene. See, this is isobutene and this is the tertiary. Sorry, not tertiary. This is 2-methyl propane. These are the 2 products. This is also very, very important case. Right up. Now see question number 14. Which of the following compound is prepared, yes, synthesized by what is the reaction? A, CH3, CH2, CH3. B,
now C, now here D. ठीक है भाई, बताओ कौन सा वाला रिएक्शन, कौन सा वाला जो प्रोडक्ट हम वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं? We know that in the Wurtz reaction we can prepare the alkane having even number of carbon atoms. देखो यहाँ पे even number मतलब डायमेंशन पॉसिबल नहीं, आप ऐसे कट करेंगे, देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये ऑड नंबर है 1 2 3, तो ये नहीं बना पाएंगे. नो सी 1 2 3 4 इवन नंबर है, बट ड्यू tertiary orbital ड्यू टू क्राउडिंग डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ये वाला. हाँ, बट यहाँ पे देखो उतना क्राउडिंग नहीं है. दिस इज CH3, आप इसको बीच में से कट कर सकते हैं. ये डायमेंशन इवन नंबर, देखो इवन नंबर चेन में होगा. दिस इज 1 2 3 4 पेरेंट चेन में, तो दिस इज राइट आंसर. ये नहीं बना पाएंगे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर, तो आपको कट नहीं कर सकते इक्वली. सो राइट आंसर इज सी. ओके, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन 15. सपोज आपका ऐसा कुछ दे रखा होगा. Now Cl, now Cl. Now here sodium and ether. Now first you will get what? Free radical बनेगा. But here dimerization is not possible due to crowding again. See यहाँ पे ये रिंग है, तो simply क्या बनेगा? Even though it is unstable, आपका बन गया ये डबल बॉन्ड. Okay. Now next 16th problem. See here, this is one compound here. Now this is Br, now Br. Now when you heat this compound with sodium and ether, now what will the product? निकालो दो ये और ये, तो बन गया तुम्हारा what? Now आपका प्रोडक्ट ऐसा. These are the total 16 problems based on Wurtz reaction. भाई ये Wurtz reaction के ऊपर मैंने आज बहुत तगड़े प्रॉब्लम कराया. This is very very important Wurtz reaction. इस Wurtz reaction में हमने टोटल 16 प्रॉब्लम विद एडवांस मेंस नीट क्वेश्चंस करवाए, एक्सेप्शनल केस और इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाया. ओके, नाउ कुछ रिएक्शन से Wurtz के वो भी बात करते हैं हम लोग. Now next is, see here, next reaction is Wurtz fitting reaction. By what is the Wurtz fitting reaction? It is very simple. Now see, when alkyl halide is treated with aryl halide, see, this is bromobenzene. This is called alkyl halide, alkyl group है. This is aryl benzene, aryl halide. So when there is one alkyl halide, one aryl halide, in presence of sodium and ether, तो देखो ये दो निकलेगा 2Br 2 sodium and this CH3 fixed on the fitting. This CH3 fit on the benzene. That's why this is called Wurtz fitting reaction. This is called toluene. When the reactants are two alkyl group, then it is called Wurtz reaction. When one alkyl, when aryl, then Wurtz fitting reaction. Next is fitting reaction. What is fitting reaction? See here. So when two are alkyl halide, see here, when the two reactants are alkyl halide, both are alkyl halide, 2 moles, in presence of sodium, you will get what? 2 phenyl rings are combined. So this is called fitting reaction. So the name of this compound is biphenyl. So when two aryl groups are there, fitting reaction. One aryl, one alkyl halide, Wurtz fitting. Two alkyl, Wurtz reaction.
यार और एक बताता हूं यहाँ पे. नेक्स्ट इज सी Ullmann's reaction. So what is the Ullmann's reaction? Very simple. ये भी देखो, इसमें only we have to take only iodobenzene compulsory. Iodobenzene. When 2 moles of iodobenzene heated with copper tube, heating and copper tube. So dimerization होगा तो आपका बन गया यहाँ पे भी डाइफिनल ही बना. But this reaction is Ullmann reaction. यार एग्जाम में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन दिया, नीट एग्जाम में पूछा ऐसा क्वेश्चन दे रखा, तो ऑप्शन इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. नेम द रिएक्शन, या नेम ऑफ द reaction. See A, Wurtz reaction. B, Wurtz fitting reaction. C, fitting reaction. D, Ullmann reaction. So right answer is what for this reaction? Ullmann reaction is the right answer. Okay, right away. Hope so you all of you understood all the concepts. What is the Wurtz reaction and its limitations and mechanism and mains and advanced and need problems and their exceptional cases. Okay, so यार हम लोग next time after this I will explain the another reaction, that is queen of the alkane. This is what king of the alkane. The queen of the alkane is what? Kolbe electrolysis. Okay, so if you like this my video, please keep on watching my videos and please subscribe my YouTube channel SK Chemistry Academy so that you can get the notification for upcoming videos, and please like and share my videos. Thank you.